तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम लोग ऐसे बताया था कि आज सब गवाही देने का अवसर भी है. We can speak about what God has spoken to us, and specifically, very briefly, in our own personal life, God is teaching us many things. Sister Lija is on the line. Yes, brother. Yeah. तो प्रभु हमको, the Lord is teaching us everything, lot of things daily. तो परमेश्वर हमें प्रतिदिन बहुत सारी चीजों को सिखाते जा रहे हैं. And as the apostle we heard, it's the book of Philippians chapter 3. जैसे हमने सुना फिलिपियों की किताब 3 अध्याय में verse 13, 13 वचन. it says, brothers, I do not regard myself as having laid off it yet. हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ. What is the meaning of that? Is that does not mean that I have already become very spiritual and become like Jesus. We have got a long way still to go. तो उसका मतलब यह है कि मैं नहीं विश्वास करता कि मैं इतना आत्मिक बन चुका हूँ या यीशु मसीह के समान में बन चुका हूँ. अब तक मुझे और भी लंबा रास्ता जाना है आगे. The apostle Paul was writing this when he was towards the end of his life. He was put in prison because of the gospel. तो प्रेरित पौलुस ने जब ये पत्री को लिखा तो उनके जीवन के अंतिम दिनों में उनको बंदी गृह में डाला गया था. तभी His life was so good, so perfect, so nice he was, but still he was saying that I have not become like Jesus. तो उनका जीवन इतना भला था, इतना सिद्ध था, इतना अच्छा था, तो भी वो कहते हैं कि मैं अभी तक यीशु मसीह के समान बन नहीं पाया हूँ. That yeah, now all the past good thing which I have done and all my past mistakes I'm forgetting. I want to forget about it and I want to press on towards what lies ahead. तो जितने भी मैंने अच्छे काम पहले किए हैं, बुरे काम किए हैं, सारी बातों को मुझे भूल कर आगे की ओर मैं दौड़ता जाता हूँ. And we want to press on to what? To the prize of the upward call in Christ. तो उनको किसकी ओर दौड़ते जाना है? जो ऊपरी बुलाहट का जो इनाम है उसके ओर. And what is this upward call? और ये ऊपरी बुलाहट क्या है? It will become like Jesus Christ in my behavior. वो यीशु मसीह के समान बन जाना मेरे रवैये में. In my behavior and in my whatever I serve the Lord, I must just live as Jesus lived. जो कुछ भी मेरा बर्ताव रहता है, जैसे भी मैं कोई काम करता हूँ, मुझे यीशु मसीह के समान ही जीना है. So all Christians, when they come to the Lord, they are either in the KG class or they can go higher and higher. There's no limit to going higher. तो जब भी मसीह में कोई जन आते हैं तो पहले वो केजी क्लास में हो सकते हैं और हम उसमें और भी आगे आगे बढ़ सकते हैं, कोई भी स्तर पर पहुंच सकते हैं. To be in KG class means we thanking God for the forgiveness of sins and really thanking God for all His blessings over our lives. तो केजी क्लास में होने का मतलब ये है कि हमारे पापों के लिए क्षमा मांगना, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किया है उन बातों के लिए उनको धन्यवाद कहना. But advancing in our spiritual lives is to become faithful to the Lord and to behave as the Lord behaved in different areas of our life. हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति पाने का अर्थ ये है कि हमें यीशु मसीह के समान बनना और यीशु मसीह जैसे बर्ताव करते थे वैसे हमारे जीवन के हर एक परिस्थितियों में वैसे ही एक मनोवृत्ति रखना. In my personal life, to think as the Lord thinks. मेरे व्यक्तिगत जीवन में यीशु मसीह जैसे सोचते थे वैसे सोचना. There is a lot of development to take place. बहुत सारी जो उन्नति है, बदलावट है, वो होना है. To speak as the Lord speaks. यीशु मसीह के समान बात करना. I mean, not speak idle words and to listen as the Lord listens. और बेकार की बातें ना करना और जैसे यीशु मसीह सुनते थे वैसे ही सुनना. Don't listen to all the nonsense that is spoken out in the TV or the music reel, but to listen to things what Jesus would listen. तो टीवी में या म्यूजिक या संगीतों में जो बेकार की बातें सुनना नहीं, परंतु यीशु मसीह जैसे सुनते थे वैसा सुनना. And to go where the Lord would want me to go. और उन राहों पे चलना जहाँ पे यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं चलूं. And do the things that the Lord wants me to do. और वो सब काम करना जो प्रभु चाहते हैं कि हम अपने जीवन में करें. To behave in the home as Jesus wants me to behave. घर में ऐसे बर्ताव करना जैसे यीशु मसीह चाहते हैं कि जैसे मैं घर में रहूं. As a husband to love my wife as Jesus loved, or as a father to bring up my children as the way Jesus brought up. पति अपनी पत्नी से यीशु मसीह जैसे प्रेम करते थे वैसे प्रेम करना, और एक बाप अपने बच्चों को प्रभु जैसे बड़ा करते वैसा बड़ा करना उनको प्रभु में. And the wife
to live in a submissive way to the husband. और पत्नी एक अधीनता के स्वरूप में अपने पति की ओर जीवन व्यतीत करना। In the workplace, to do the things as faithfully as unto God, not unto our boss. तो काम करने की जगह में विश्वास योग्यता से परमेश्वर के लिए काम करना, ना कि अपने बॉस के लिए। To be righteous in money matters and to be faithful in money matters. और पैसों के मामले में धार्मिक रहना और विश्वास योग्य रहना। To love my neighbors. और हमारे पड़ोसी से प्रेम रखना। To be kind and good to all people. और सारे लोगों के साथ अच्छा रवैया रखना और उनके साथ करुणामय तरीके से रहना। Show respect to all men. सारे मनुष्यों को सम्मान देना। And the church to really live as Jesus lived and in the church. और कलीसिया में भी यीशु मसीह जैसे जीते थे वैसे ही जीना। And to serve the Lord as the Holy Spirit leads me. और परमेश्वर की सेवा करना जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं वैसे ही। For all that I have to give up my own self will and to live to listen to the voice of the Lord. और वो सब करने के लिए मेरी सारी स्वार्थी इच्छा को मुझे त्याग देना है और परमेश्वर के वचनों की ओर मुझे ध्यान लगाना है। Because my self will always try to obstruct me from doing the will of God. क्योंकि मेरा जो स्वार्थी इच्छा है परमेश्वर की इच्छा करने के लिए मुझे एक रुकावट बन जाता है वो। Suppose we want to get up in the morning to pray. उदाहरण के तौर पे अगर हमें सुबह उठ के प्रार्थना के लिए प्रार्थना करना है। My self will say, I want to sleep. I'm feeling more tired. मेरा स्वार्थी इच्छा कहेगा मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे और सोना है। But we say, oh, we have already slept for 7 hours. परंतु हम कहेंगे नहीं, हमने और 7 घंटा तो सो गए हैं हम। और The Holy Spirit will say, now get up and pray. पवित्र आत्मा कहेंगे कि अभी उठ जाओ और प्रार्थना करो। Say no to your self desire. और हमारी स्वार्थी अभिलाषाओं को नकारना है। This is known as pressing on. यही है परमेश्वर की ओर बढ़ते जाना। Pressing on means to do what God wants me to do and not what I want to do. बढ़ते जाने का मतलब है परमेश्वर जो चाहते हैं कि मैं करूं वो कामों को करूं, ना कि स्वार्थी इच्छाओं को करूं। So that I can live like Jesus lived. ताकि मैं यीशु मसीह के समान जी पाऊं। We all know that if we just give to our own earthly desires, we will never make any progress in our earthly life. हम जब जानते हैं कि अगर हमने सांसारिक अभिलाषाओं को त्याग नहीं दिया तो हमारे आत्मिक जीवन में कदापि बढ़ोतरी नहीं पाएंगे हम। If we have to do our studies or to go for an exam, for a course, we have to work hard and we have to say no to our own desires like sleeping and eating and going for picnic. We have to deny all that and we have to study. That's why then only we get good marks. अगर हमें कोई परीक्षा देना है कुछ काम के लिए तो हम उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है। उसके लिए हमें सारी जो बेकार की बातें हैं उन सारी बातों को त्यागना पड़ता है और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है, तभी हम उसमें सफलता पाते हैं। Same thing in our spiritual life. The Holy Spirit will tell us, but He will never force us to follow the Lord. यही हमारे खुद के जीवन में भी होता है। पवित्र आत्मा हमसे धीमी आवाज में कहते हैं, वो हमें कदापि जबरदस्ती नहीं करते हैं कि आप परमेश्वर का पीछा करो। But most of us like to take life very easy. तो बहुत सारे हम में से लोग उन बातों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। And because of that, most believers' lives are very sluggish at a very lower level, KG class and first standard. इसलिए बहुत सारे विश्वासियों का स्तर जो है अभी भी बहुत ही कम है, वो अभी भी केजी क्लासेस में ही है। They are not willing to work hard and give up their life and to follow the Lord. वो बहुत मेहनत नहीं करना चाहते, पर अपने जीवन को त्याग कर परमेश्वर को पूरी तरह सौंपना नहीं चाहते। They are not willing to give up their ego. उनके अहंकार को वो त्यागना नहीं चाहते। They want to love the things of this world and all the things that please them. इस संसार की सारी बातों पर वो प्रेम रखना चाहते हैं और जो बातें उन्हें प्रसन्न करता है उन बातों पर लगे रहते हैं। So even after 20 years of living even in CFC, they remain as spiritual babies. इसलिए CFC में रह के भी 20 साल बिताने के बाद भी वो आत्मिक बच्चे ठहरते हैं। That's why they grumble and murmur and complain all the time. वो हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं हर समय। And God cannot use them at all. और परमेश्वर उनका इस्तेमाल कदापि नहीं कर पाते। But there are people like Apostle Paul and Timothy and Titus and all godly people. They said, no, my life is for Jesus. Jesus has done so much for me. I want to follow Him. तो जैसे ही कि प्रेरितों को हम देखते हैं, पौलुस, तिमोथी और तीतुस, उन्होंने कहा परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे काम किया है, इसलिए मैं सब छोड़कर परमेश्वर का पीछा करना चाहता हूँ। I'm not going to go into debt and borrow money from other people. मैं कर्जे में जाकर दूसरे लोगों से पैसा उधार लेना नहीं चाहता। I want to be content with whatever God has given me. परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसमें मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। I don't want my mind to be set on earthly things. मेरे मन को मैं संसारिक बातों में लगाना नहीं चाहता।
That's why it says in verse Philippians chapter 13, फिलिपियो 3 अध्याय verse 17. 17 वचन। He's saying, brothers, join in following my example and observe those who walk according to the pattern you have in us. क्या लिखा है, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम पे पाते हो। See, there are a lot of preachers everywhere, but we have to see how they are living their lives. Are they living a godly life? Are they living a holy life? And what is their lifestyle as far as money is concerned? And what about their private life? That we have to follow them. As the Apostle Paul said, see my life and follow me. तो बहुत सारे प्रचारक अभी इस दुनिया में है, तो हमें देखना है कि उनका जीवन कैसा है, क्या वो भक्ति में जीवन बिताते हैं कि नहीं, उनका जो स्वभाव है, उनका पैसों का व्यवहार है कैसा है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे पौलुस कहते हैं कि जैसे चाल चलता हूँ मैं, ऐसा चाल चलता हूँ, वो सबके लिए उदाहरण है। And there is said the Apostle Paul had many brothers and sisters like Timothy and Titus and so many other people whom he named, like Priscilla, Aquila, and so many other people. So they were really godly people. He said you must follow their example. तो प्रेरित पौलुस यहाँ पे कहते हैं उनके बहुत सारे भाई बहन जैसे कि तिमोथी है, तीतुस है, प्रिसिल्ला है, अक्विला है। तो परमेश्वर वो जो है सभी लोग भक्ति का एक चाल चलन चलते थे और पौलुस यहाँ कहते हैं कि उन्हीं का उदाहरण का तुम पीछा करो, उनकी सी चाल चलो। And verse 18 says, for many walk, as I often told you, now even with weeping, that they are enemies of the cross of Christ. और 18 वचन, क्योंकि बहुतेरे ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। The Apostle Paul said, I am crying for them because see how they are behaving and see how they are leading other people astray. तो पौलुस यहाँ पे कहते हैं कि मैं उनके लिए रोता हूँ कि कैसे वो दूसरे लोगों को नाश की ओर लेके जाते हैं उनके चाल चलन के द्वारा। They are taking the name of the Lord. They are big preachers, teachers, singers, and all that, but they are enemies of the cross of Christ. तो बहुत सारे बड़े वो प्रचारक हैं, बहुत सारे प्रचार करते हैं, गीत गाते हैं, परंतु वो मसीह के क्रूस के बैरी हैं। What is the meaning to be an enemy of cross of Christ? मसीह के क्रूस के बैरी बनने का परिभाषा क्या है? They don't want to deny themselves. They want to do what they like, and they don't want to obey the commandments of God. तो वो अपने आप को त्यागना नहीं चाहते, उनको जो पसंद है वही करना चाहते हैं, वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहते। So Jesus is the God of their convenience to help them to become rich and to famous. परमेश्वर उनके लिए एक सुविधा का एक मूल है, उनको मशहूर बनाने के लिए और उनको सारे आशीषों से भरने के लिए। The rest of their life they want to live for themselves and to become rich and to live a comfortable life in this world. वो अपने जीवन के बाकी दिनों में वो बहुत ही धनी बन के जीना चाहते हैं और एक सुख सुविधा का आरामदायक जीवन बिताना चाहते हैं। And they want to make a name for themselves. और वो अपने आप के लिए एक नाम बनाना चाहते हैं। And the Apostle Paul, during his time, there were also a lot of preachers like that. और प्रेरित पौलुस के समय में भी बहुत सारे ऐसे प्रचारक हुआ करते थे। The Apostle Paul said, "I am preaching the gospel, but when I look at that, I feel like crying." तो प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं इतना सुसमाचार सुनाता हूँ, जब मैं उनकी ओर देखता हूँ तो मैं रोता हूँ। Poor unbelievers are being led astray by these crooked people. जो निर्बल, जो अविश्वासी है, ऐसे लोगों के द्वारा, कुटिल लोगों के द्वारा वो नाश किए जा रहे हैं। Verse 19 says, "What is the result of their life? Their end is destruction." 19 वचन कहता है उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। In this world, they are doing what they like and enjoying themselves with money and pleasure, but ultimately they will go to hell. तो इस संसार में रहकर उनको जैसा अच्छा लगता है वो करते हैं, पैसों के विषय में, सारी बातों में, और अंत में क्या होगा, वो नरक की ओर चले जाएंगे। And their God is their appetite. और उनका ईश्वर जो है उनका पेट है। That means they just want to eat good food and really enjoy themselves. उसका मतलब ये है वो हमेशा अच्छा खाना खाना चाहते हैं और अपने आप में आनंदित होना चाहते हैं। We also like to eat good food. और हमें भी अच्छा खाना खाना पसंद है। But if it is a priority in our life, that means that becomes our God. अगर वो हमारे जीवन में मुख्य स्थान लेता है तो वो हमारा ईश्वर बन जाता है। The Apostle Paul is speaking to believers, is not speaking to unbelievers. तो प्रेरित पौलुस जो है विश्वासियों से बात कर रहे हैं, ना कि अविश्वासियों से। Why does the stomach become our God? Because we grumble about all sorts of food that is not according to our taste. तो क्यों अपने लिए पेट जो है हमारा ईश्वर बन जाता है? क्योंकि अगर जो खाना हमें पसंद नहीं आता है तो हम उस पर बहुत कुड़कुड़ाई करते हैं। And their glory is in their shame.
और उनकी जो लज्जा है वो घमंड की बातों पर है। They glory in the fact they've got so many cars and they're good clothes and good houses and so many, a lot of money. तो वो इतनी इस बातों पर घमंड करते हैं, महिमा लेते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है, बहुत घर है, बहुत गाड़ियां हैं, इन बातों पर महिमा लेते हैं। But one day on the judgment day, all these things will be worthless and burnt down. तो जब न्याय का दिन आएगा, ये सारा कुछ जो है जल जाएगा और नाश किया जाएगा। Jesus said not to gather up treasure in this world. यीशु मसीह ने कहा इस संसार में खजाना मत इकट्ठा करो। Right? Because then our mind will be on the things of this world. क्योंकि हमारा जो मन है इस संसार की चीजों पर लगा रहेगा। But Jesus, then the verse next says that who set their minds on earthly things. और दूसरा वचन कहता है जिन्होंने अपने मन को इस संसार की बातों पर लगा दिया है। Now we have to set our mind on heavenly things. तो हमें अभी स्वर्गीय चीजों की ओर अपने मन को लगाना है। Now, if you are thinking all the time on earthly things, then you will also become an enemy of God. अगर हम सारे समय संसार की बातों के ऊपर ध्यान लगाते रहते हैं तो हम भी जो है प्रभु मसीह के क्रूस के बैरी हो जाते हैं। We can sit in the church and sing some nice songs, but then our mind is set on earthly things. तो हम कलीसिया में बैठकर भले ही अच्छे गीतों को सब गा सकते हैं, परंतु अगर हमारे दिमाग में संसार की बातें भरी हुई रहेगी, उसके ऊपर हमारा मन लगा हुआ रहेगा। So that's why we have to press on through these things and say, Lord, these things I have to use, and then this world is not my home. I want to live for you, Lord. तो हमें इन बातों को कहना है कि मुझे इस्तेमाल करना है, परंतु संसार मेरा घर नहीं है, मुझे आपके लिए ही जीना प्रभु। And verse 20 says, for our citizenship is in heaven. और 20 वचन में लिखा हुआ है कि हमारा जो नागरिकत्व है वो स्वर्ग का है। That Jesus is our King and we are waiting for him to come and he will change us. और यीशु मसीह हमारे राजा है, हम उनके लिए उनके आने का इंतजार कर रहे हैं, वो हमें बदल देंगे। So the apostle Paul also had the same desires that we had. तो प्रेरित पौलुस को भी वही सारी अभिलाषाएं ही थी जो हम में भी है। But what it says is he counted in all things as rubbish. परंतु उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इन सारी चीजों को कचरा समझा। Verse 8 says in Philippians chapter 3. फिलिपियो 3 उसके 8 वचन में लिखा है, More than that, I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Jesus Christ my Lord, for whom I am suffered the loss of all things and count them but rubbish in order that I may gain Christ. वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। So if I want to gain Jesus Christ, I must count all these things as rubbish. Let them go if they have to go, but I am going to live for Jesus. अगर मुझे यीशु मसीह को प्राप्त करना है तो मैं इन सारी बातों को कूड़ा समझता हूँ। अगर उन चीजों को जाना है तो मुझे जाने दो और मुझे यीशु मसीह के लिए सिर्फ जीना है। So we have to, the apostle Paul's aim was to gain Christ. तो प्रेरित पौलुस का जो लक्ष्य था वो मसीह को पाना था। So what does it mean to gain Christ? और मसीह को प्राप्त करने का अर्थ क्या है? Christ means the Messiah, the anointed one. तो मसीह का अर्थ है अभिषिक्त किया हुआ। We must always be anointed by the Lord. तो वो प्रभु के द्वारा हमेशा अभिषेक किया जाना है। Not just for preaching and teaching or doing, but every day in my life I should live an anointed life. तो सिर्फ प्रचार करने में या सिखाने में नहीं, परंतु मेरे जीवन के हर दिन में एक अभिषेक से भरा हुआ जीवन बिताना है मुझे। And if I'm only separate from the world, then only God can anoint me. अगर मैं संसार से अलग हो पाता हूँ तो ही प्रभु मुझे अभिषेक कर सकते हैं। Otherwise I'll be filled with lot of knowledge but no anointing. नहीं तो मैं सारे ज्ञान की बातों से भरा रहूंगा, परंतु अभिषेक मेरे अंदर नहीं रहेगा। The Apostle Paul said all the education that he had learned at the feet of Gamaliel as a Pharisee, he counted it all as rubbish. तो प्रेरित पौलुस यहाँ कहते हैं जितनी भी ज्ञान की बातें उन्होंने गमलीएल के पास बैठ के सीखा है, जो भी बुद्धि ज्ञान के पास, सब बातों को वो कचरा समझते हैं। The Apostle Paul was very intelligent. तो प्रेरित पौलुस जो थे बहुत ही बुद्धिमान थे। He had lot of knowledge of Bible. उनके पास पवित्र शास्त्र के बहुत अच्छा ज्ञान था। But that is all rubbish. परंतु वो सब कुछ कूड़ा समझते हैं वो। Why is it rubbish? क्यों वो कचरा है? Because what is known to us by the Holy Spirit, that is given to us when we become like little children, and then we get the wisdom of God. जब हम छोटे बच्चों के समान बनते हैं तो ही पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उस ज्ञान को हमें परमेश्वर के द्वारा मिलता है और फिर हम प्रभु के समान बन जाते हैं।
Because Jesus himself said he hides the things from the wise and the intelligent, but he shows them to babies. तो यीशु मसीह ने खुद ने कहा जो बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति है उनसे इन ज्ञान की बातों को वो छुपा कर जो बच्चे के समान है उनको इन बातों को प्रकट करके देते हैं वो। So the Apostle Paul, even though such an educated person, he had to become a humble person like a little baby to know Christ. तो इतने पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति होने के बावजूद प्रेरित पौलुस को एकदम बच्चे के समान अपने आप को नम्र करना पड़ा ताकि यीशु मसीह की उस बातों को वो जान पाए। Same thing with the Apostle James. और याकूब जो प्रेरित याकूब है उनके साथ भी ऐसा ही। We see in the book of James. हम याकूब के पत्र में जाते हैं। Chapter 4 verse 8. चौथा अध्याय उसका 8वां वचन। He says, draw near to God and he will draw near to you. परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। Do you know who James was? तो हम जानते हैं याकूब कौन था? He was Jesus' own brother. वो यीशु मसीह के खुद के भाई थे। When Jesus was doing his ministry, going about healing people and preaching, they were really mocking him. They did not want to believe him at all. जब यीशु मसीह बहुत सारी सेवकाई कर रहे थे, बहुत सारे चंगाई सबको काम कर रहे थे, तो वो जो है यीशु मसीह को देखकर उनका टट्टा उड़ाते थे। वो बिल्कुल भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। And he knows from his own example that he was a double-minded person. He was a sinner. He loved the things of this world, and that's why they did not follow the Lord. तो उनको खुद को पता था कि उनके जीवन में ये दो मन वाली बातें थी। वो खुद पापी थे और बहुत पाप की राहों में, संसार की राहों में जाते थे, इसलिए वो प्रभु का पीछा नहीं कर पाए, उन पे विश्वास नहीं कर पाए। So when he began to draw near to the Lord, then God, to Jesus Christ, then the Lord saved him. जैसे ही वो प्रभु के पास आने लगे तो परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। And he had to cleanse his hands. और फिर उनको अपने हाथों को शुद्ध करना पड़ा। All the wrong things we do with our hands, with the work that we do, that we have to set it right. तो जो भी अपने हाथों के द्वारा जो भी गलत काम हम करते हैं, उन सारी बातों को हमें सही करना है, उसमें से शुद्ध होना है। We say, Lord, I don't want to do any wrong thing in my hand. तो हमें कहना है कि प्रभु मेरे हाथों के द्वारा कोई भी गलत चीजें मैं करना नहीं चाहता। I don't want to sign wrong statements. मैं गलत जो पत्री है उस पे सिग्नेचर नहीं करना चाहता। Any wrong habits like drinking, smoking. कोई भी गलत आदत जैसे कि धूम्रपान करना या शराब पीना। And other things that they do with their hands. जो और काम जो अपने हाथों के द्वारा हम करते हैं। So we have to cleanse our hands, means to cleanse all our activities. तो अपने हाथों को शुद्ध करने का अर्थ ये है कि हमारे जितने भी हाथों के द्वारा व्यवहार होता है उसमें से हमें शुद्ध करना। What are our hands doing on the mobile? हमारे हाथ मोबाइल में क्या करते हैं? Then we have to cleanse our hands. I don't want my hands to go and do the bad things. तो हमें अपने हाथों को शुद्ध करना है। मुझे अपने हाथों से गलत चीजों को जाके करना नहीं है। I want to do only the things that are good. मुझे वही काम करना है जो भले हैं। And he says, cleanse your hands, you sinners. और वो कहते हैं पापियों अपने हाथ को शुद्ध करो। The apostle James is not speaking to unbelievers but speaking to believers. या प्रेरित याकूब जो है अविश्वासियों से बात नहीं कर रहे हैं, वो विश्वासियों से बात कर रहे हैं। If I want to draw near to God, I have to. If people call me a sinner, I have to humble myself and cleanse my hands. अगर हमें अपने आप परमेश्वर के निकट जाना है, लोग हमें पापी कहेंगे, तो अपने आप को हमें शुद्ध करना है, हमारे हाथों को। And purify your hearts, you double-minded. और अपने हृदय को पवित्र करो दुचिंता वाले लोगों। All the intentions of my heart, I must see. I want God and I want the world also. Both the things were double-minded. तो मेरे जीवन की हृदय की मनोवृत्ति ये है कि मैं संसार को भी चाहता हूँ और परमेश्वर को भी चाहता हूँ। ये मेरा दो मन है। James says a double-minded man is very unstable. अब याकूब कहते हैं कि दुचिते लोग हैं वो हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। So once they want God, once they want the things of this world. एक बार वो परमेश्वर को चाहते हैं और दूसरी बार वो संसार की बातों को चाहते हैं। So then we have to purify our hearts. फिर हमें अपने हृदयों को पवित्र करना है। To make it a single mind. और फिर उसको एक मन करना है। Because God doesn't want double-minded people. क्योंकि परमेश्वर दो चिंता वाले लोग नहीं चाहते। Jesus said you cannot serve God and you cannot serve your money. यीशु मसीह ने कहा तुम परमेश्वर को और धन को एक साथ सेवा नहीं कर सकते। On Sunday and weekdays we spend our mind on the Lord, and other days we are thinking how much money we can make, more and more money we can make, and we live after money.
और रविवार को हम परमेश्वर के ऊपर अपने दिमाग लगाते हैं, और दूसरे हफ्ते के दिनों में हम ये सोचते हैं कि पैसा जितना ज्यादा से ज्यादा कैसे कमा पाऊंगा मैं। But then we have to humble ourselves. फिर हमें अपने आप को नम्र करना है। And the Lord says we have to be miserable and mourn और तो प्रभु कहते हैं हमें दुखी होना है और शोक मनाना है and weep. और हमें रोना है। And instead of laughing, let us learn to be very sad. तो हमेशा हंसते रहने की बजाय हमें शोक करना भी सीखना है। See, if sinners, unless we are sad, then only we can improve. अगर हम उदास होंगे तो ही हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। Before a person becomes born again, he is always sad. जो नया जन्मा हुआ व्यक्ति रहता है वो हमेशा उदास ही रहता है। Sad because he is going to go to hell. इसीलिए क्योंकि वो नरक की ओर जा रहा है, इसलिए। And when he repents, then the Lord will give him the Holy Spirit, and then joy will come into his heart. और जब वो पश्चाताप करता है, परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा देते हैं और आनंद उसके मन में भर जाता है। So the same way in our lives, if there is something wrong thing in our life, we have to mourn over it. We have to be gloomy and sad, and then the Lord will fill us with the Holy Spirit. अगर हमारे जीवन में भी कुछ गलत है तो हमें रोना है, हमें शोक मनाना है, उदास रहना है, फिर परमेश्वर जो है अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर देंगे। And verse 10 says, humble yourselves in the presence of the Lord, and he will exalt you. और 10वां वचन कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। See, God is the one. I cannot fool God. I have to just go. Better to go before the Lord now than to stand before the Lord at the judgment seat. तो परमेश्वर को मैं मूर्ख नहीं बना सकता, तो ये अच्छा है कि मैं आज ही परमेश्वर के सामने अपने आप को कबूल करके जाऊं, ना कि उस न्याय के सिंहासन के सामने आखिरी दिन में खड़ा हो जाऊं। So then I have to say, Lord, these are the things wrong in my life that you have shown me. I want to change. Lord, please help me. And the Lord will give me grace to make repentance and turn away. तो मैं परमेश्वर को कहूंगा कि प्रभु ये सारी गलती है मेरे जीवन में, तो मुझे बदलना है। तो परमेश्वर मुझे कृपा देंगे कि मैं इन सारे बातों से बदल जाऊं और पश्चाताप करते हुए मैं परमेश्वर के सामने आगे बढ़ूं। And he will exalt me. और वो मुझे शिरोमणि बनाएंगे। What does it mean that I will be exalted? और शिरोमणि बनाने का अर्थ क्या है? God will bring me to the heavenly places in Christ Jesus. क्योंकि प्रभु हम मुझे जो स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के संग मुझे वहां पे शामिल करेंगे। I will walk with the Lord will walk with me. परमेश्वर के संग में चलूंगा और परमेश्वर मेरे संग चलेंगे। Says if you draw near to God, God will draw near to you. यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के निकट आओगे तो परमेश्वर तुम्हारे भी निकट आएंगे। The greatest thing any human being, any brother or sister can have is that the Lord walks with me. तो जो सबसे महान बात जो कोई भी भाई बहन पा सकता है वो ये है परमेश्वर मेरे संग चले, उस बात को। That is meaning of walk as Jesus walked. उसका अर्थ है यीशु मसीह जैसे चले वैसे चलना। He walked with the heavenly Father. वो प्रभु स्वर्गीय पिता के संग वो चले। So when I walk with God, और जब मैं प्रभु के साथ चलता हूँ, God is very close to me. प्रभु मेरे हमेशा निकट रहते हैं। I will walk far away from sin. मैं पाप से बहुत दूर चला जाऊंगा। My mind will be set on the Lord. मेरा जो मन है परमेश्वर की ओर लगा हुआ रहेगा। I will do all my earthly duties in a very godly way. और मेरे संसार के सारे कामों को मैं हमेशा भक्तिमय तरीके से करूंगा। And then I can wonderful fellowship with the Lord, and the Lord can speak to me, and I can speak to Him. और फिर मैं परमेश्वर के साथ एक अच्छी संगति रख पाऊंगा, मैं परमेश्वर से बात कर पाऊंगा और परमेश्वर मुझसे भी बात कर पाएंगे। Then I will do what the Lord wants me to do. और फिर मैं वो करूंगा जो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं करूं। Not what I want to do. वो नहीं जो मैं करना चाहता हूँ वैसा। We know that Noah walked with God. हम जानते हैं कि नोहा जो है प्रभु के साथ चले। Enoch walked with God. हानोक जो है प्रभु के संग चले। Abraham walked with God. अब्राहम प्रभु के संग चले। Jacob walked with God. याकूब परमेश्वर के संग चले। Moses walked with God. मूसा भी परमेश्वर के संग चले। That's why God's presence was there with them. इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा उनके साथ थी। Now in the New Testament, we have the wonderful privilege of the Holy Spirit coming to help us so that we can walk with the Lord. और इस नए नियम में इतना अच्छा सौभाग्य मिला है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर उतरता है ताकि हम परमेश्वर के साथ चल पाए। We know this benediction that we say, may the grace of our Lord Jesus Christ. तो हमें पता है, हम हमेशा कहते हैं इस बातों को कि प्रभु की जो यीशु मसीह की जो करुणा है, दया हम पर हो। And the love of God the Father. और जो प्रेम है पिता परमेश्वर का। And the fellowship of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के संग जो संगति। Be with you all now and forever. सबके संग हमेशा आज के हमेशा के लिए बना रहे। So that is in 2 Corinthians chapter 13, the last verse. वो 2 कुरिन्थी 13 अध्याय के आखिरी वचन में है। The fellowship of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के संग संगति। The fellowship means
The Holy Spirit is speaking to me and I am speaking to the Holy Spirit. संगति का मतलब है मैं पवित्र आत्मा से बात करता हूँ, वो पवित्र आत्मा मुझसे बात करते हैं। This is the high calling that we have, and that should become better and better. और ये ऊपरी बुलाहट हमें है और ये हमारे जीवन में बेहतर से बेहतर होते जाना है। As we grow mature and more obedient, the fellowship becomes better. जितने ही हम सिद्ध होते जाते हैं, आज्ञा मानने लगते हैं, ये जो संगति है और बेहतर होती जाती है। For example, a father and mother are there, and they have fellowship with their 5-year-old son. उदाहरण के तौर पे एक माता पिता है, उनके एक 5 साल के बच्चों के संग उनकी अच्छी संगति है। But the fellowship is a very low level. परंतु उनकी जो संगति है बहुत निचले स्तर पे है। But as the son grows up to be about 20-25 years old, they speak in a different level as almost equal. तो जब वो बेटा जो है बड़ा होकर 20-25 साल का बनता है तो उनके साथ उस अलग स्तर में वो बातें करते हैं। The level of talk and discussion is very different. जो जिस तरह से जो स्तर का जो बातें करना रहता है, जो चर्चा रहता है, वो बदल जाता है। Not like a 3-year-old and 4-year-old. एक 3 साल या 4 साल के बच्चे के समान नहीं रहेगा तब। So God wants to speak to us as adults. He wants us to become mature. तो परमेश्वर हमसे बातें करना चाहते हैं एक सिद्ध रूप में हम होने के जैसा। So that's why we must be obedient to the Lord and press on to know the Lord. इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है और परमेश्वर की ओर बढ़ता जाना है। And to cleanse ourselves of all these wrong things that God shows us. और हमें हमारे जीवन में जो भी परमेश्वर गलत चीजें दिखाती है उन चीजों को शुद्ध करते हुए। And then the joy of the Lord will be there, and we will always rejoice in the Lord. और फिर परमेश्वर की आनंद हमेशा हमारे जीवन में रहेगा, हम हमेशा परमेश्वर में आनंदित होते रहेंगे। Oh dear brothers and sisters, let us do that on a day-to-day basis. हे भाइयों बहनों, ये जो काम है हम प्रतिदिन के जीवन में हमारे करते जाएं। Every day we can have fellowship with the Lord. हर दिन हम परमेश्वर के साथ एक अच्छी संगति में रह सकते हैं। And the wrong things we have to do, we have to set it right so that our fellowship with God can become better. और जो गलत चीजें हमारे जीवन में है उन चीजों को सही करना है ताकि हमारी परमेश्वर के साथ जो संगति है वो बेहतर होते जाए। When Abraham was called by God from the Ur of the Chaldees, he obeyed, but at that time his fellowship with the Lord was not a very deep fellowship. तो जब हम देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर बुलाते हैं तो अब्राहम जो करता है उनकी परमेश्वर की आज्ञा को मानता तो है, परंतु उसके संग परमेश्वर की जो संगति रहती है इतनी अच्छे स्तर पे नहीं रहती है। But after 25 years, when he offered up Isaac, his only son, God said, "Now I know that my fellowship with you is on a very deep level." और जब 25 साल के बाद वो जो है अपने खुद का बेटा आइजक को परमेश्वर के लिए अर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है, तब परमेश्वर कहते हैं अब मैं जानता हूँ कि तेरी जो संगति है कितनी गहराई से है मेरे संग। His friendship and fellowship grew much deeper. तो उनका जो संगति है और उनका जो मित्रता है और गहराई से बढ़ता गया। And then the things of this world, Abraham was, even though he was so rich, he didn't run after those things at all. He said, "I want God first." तो वो अब्राहम जो थे इस संसार में बहुत धनी थे, परंतु वो इस चीजों के पीछे नहीं भागे। वो कहे कि मैं परमेश्वर के संग रहना चाहता हूँ, उनकी इच्छा को करना चाहता हूँ। But his nephew Lot was just the opposite. He just ran after all the Sodom and Gomorrah pleasures and riches, and that's why he destroyed his whole family and life. परंतु हम उसके जो चचेरे भाई लूत को देखते हैं, वो संसार की बातों से बहुत प्रेम करता था। सदोम गोमोरा के वो भाग गया, उसकी ओर मुड़ गया, संसार की बातों में मुड़कर उसके पूरे जीवन को उसने नाश कर दिया, उसके परिवार को भी नाश कर दिया। So dear brothers and sisters, we have to really check our lives to see where our fellowship is. When anything is hindering it, just lay it aside and come to God in humility. Then we'll see that the power of the Holy Spirit and the anointing of the Spirit will come upon our lives. तो भाइयों बहनों, हमें भी देखना है कि हमारे परमेश्वर के साथ संगति में कहाँ रुकावट आ रही है। फिर हमें वहां से मुड़कर आकर परमेश्वर के साथ एक नम्रता से परमेश्वर के साथ कबूल करना है, परमेश्वर को बोलना है, सहायता मांगनी है। फिर परमेश्वर जो है अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर देंगे हमारे जीवन में। Amen. Can you hear Brother Ratnaswamy speak? And after, can you all the brothers and sisters speak one by one? I thank God today's encouraging words. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के प्रोत्साहित वचनों के लिए। Then Brother Josie, we heard that David told, "I seek one thing." जैसे ब्रदर जोजी ने कहा कि डेविड ने एक बात कही कि मैं एक बात की अपेक्षा करता हूँ। Paul told, "I do one thing." पौलुस ने कहा मैं एक काम करता हूँ। Jesus told,
only one thing is necessary. यीशु मसीह ने कहा सिर्फ एक ही बात की आवश्यकता है. So we have to do only one thing, brothers and sisters. तो भाइयों बहनों, हमें सिर्फ एक ही चीज करना है. Love God with all your heart. परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से प्रेम करो. Then everything will follow. और फिर बाकी सब कुछ पीछे आ जाएंगे. So I was thinking that whether it is possible for love God and love money. तो मैं ये सोच रहा था कि क्या ये मुमकिन है कि परमेश्वर को और पैसों को एक साथ प्रेम करना. Matthew chapter 6 verse 24. मत्ती 6 उसका 24 वचन. Jesus told, यीशु मसीह ने कहा, no one can serve two masters. कोई भी दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता. We cannot serve God and money. और हम एक साथ परमेश्वर को और पैसे को प्रेम नहीं कर सकते. We cannot love God and money. हम परमेश्वर को और पैसे को एक साथ प्रेम नहीं कर सकते. If we love God sincerely, we love our brothers and sisters easily. अगर हम अपने परमेश्वर से बहुत ही सच्चे से ईमानदारी से प्रेम करते हैं तो अपने भाइयों बहनों से भी बहुत आसानी से हम प्रेम कर पाएंगे. Proverbs 10:12 says, नीति वचन 10 उसका 12 कहता है. hatred stirs up strifes. नीति वचन 10 अध्याय उसका 12. बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं. Yes, love covers all sins. प्रेम जो है सारे अपराधों को ढांप देता है. So, love always forgives. प्रेम जो है हमेशा क्षमा करता है. Then if we love God and we can't forgive others, means that love is not real. अगर हम परमेश्वर से प्रेम रख के दूसरों को अगर क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है वो प्रेम जो है सच्चा नहीं है. So we are telling lie. तो हम झूठ बोल रहे हैं. Matthew chapter 6 verse 12. मत्ती 6 उसका 12 वचन. That model prayer and forgive us our sins as we forgive others. जैसे हम प्रार्थना के तौर पे कहते हैं, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर. If we don't forgive others, अगर हम दूसरों के अपराध को क्षमा नहीं कर पाते, can we go to God and pray like this honestly? क्या हम परमेश्वर के सामने जाके ईमानदारी से ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं? So my dear brothers and sisters, love God. इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर से प्रेम रखो. Love brothers and sisters. भाई बहनों से प्रेम रखो. Don't love money. पैसों से प्रेम मत रखो. Earn money but don't love money. पैसे कमाओ परंतु उस पर प्रेम मत रखो. Love of money is the root of all evil. पैसों का प्रेम ही सारे दुष्टता का जड़ है. That is why Matthew chapter 6 verse 33 says, इसीलिए मत्ती 6 उसका 33 वचन कहता है, seek first the kingdom of God and his righteousness. पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो. Then all these things shall be added to you. और फिर से ये सब बातें तुम्हें मिल जाएंगी. So, brothers and sisters, seek first God. इसलिए भाई बहनों पहले परमेश्वर की खोज करो. God will bless us. Amen. परमेश्वर हमें आशीष करेंगे. हमें Praise God. हाँ, तो हिंदी में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा सबके लिए. तो ज़्यादा वी डोंट हैव टाइम टू ट्रांसलेट. तो एक्सेप्ट फॉर परंतामणि के नॉट स्पीक हिंदी. तो बाकी लोग भी हिंदी में बात करेंगे तो, या मराठी में भी चलेगा, सब लोग मराठी भी समझता है. तो थोड़ा तो एक तो बाकी very briefly we can always say that as many as possible people can from your own life what God is speaking to you, तो आपका जीवन में वो तो शेयर कर. Praise God. जो जॉर्ज हैमन की मीटिंग में जो मैंने वचन सुना और जो मेरे जीवन में जो चल रहा है, जो उसमें मुझे ऐसे प्रभु ने ऐसे बताया कि जो चीजें जो मैं उनसे पूछ रहा हूँ प्रेयर में, जो चीजें मैं उनसे पूछ रहा हूँ प्रार्थना करते समय,
और प्रभु यीशु ने एक वचन दिया है कि अगर हम अगर हम उनसे कुछ भी पूछेंगे प्रार्थना में, तो वो हमें उनका उत्तर देंगे, वो हमें वो दे देंगे। हमें बस उसकी प्रार्थना करते रहना है। और एक यूहन्ना में ऐसा एक वचन दिया है कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से जो भी पूछे वो हमें परमेश्वर देंगे। तो बहुत कुछ चीजें है परमेश्वर की इच्छा है जो हम लोग पूछ रहे हैं प्रभु से, हमें बस छोटे से विश्वास करना है। हमें सिर्फ सिंपली उसके ऊपर विश्वास करना है कि प्रभु हमें वो देंगे। जैसे कि मैं प्रभु से विश्वास कर रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कि प्रभु न्याय के दिन से पहले आप मुझे इतना तैयार करो, आप मुझे अपने आप को इतना मुझे न्याय करना है खुद को, कि जब न्याय का दिन हो, जब मेरा समय आए कि प्रभु यीशु मेरा न्याय करे, तो प्रभु यीशु मुझसे खुद कहे कि तुमने अपने आप को अपने जिंदगी में पूरी तरह न्याय कर दिया है। तुमने अपने आप को इतना न्याय किया कि अभी तुम्हारे न्याय के दिन तुम्हारे लिए कोई न्याय बाकी नहीं है। तुम्हें सिर्फ अच्छा ही अच्छा मिलेगा। तुम्हें कोई भी ताड़ना नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई भी बुराई नहीं मिलेगी, तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तुम्हें सिर्फ मैं रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड दूंगा। इसलिए मुझे और हर एक अलग अलग चीज भी मुझे प्रेयर करने को मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है पवित्र आत्मा से, कि पवित्र आत्मा मुझे आप और अभिषेक दो, पवित्र आत्मा आप मुझे और ज्ञान दो मेरे ऊपर, और लाइट दो मेरे ऊपर। जैसे जोजी साहब बोलते हैं, जैसे जैसे हम प्रभु से और पास होते जाते हैं, तो हमें खुद के जो पाप है वो हमें और जोर से नजर आते हैं, क्योंकि हम जो लाइट में ज्यादा जा रहे हैं, हम लोग रोशनी में ज्यादा जा रहे हैं, प्रभु की रोशनी में। जितना हम लोग प्रभु की रोशनी में जाएंगे उतना हमें हमारा खुद का जो पाप है और कठिन और आसानी से दिखेगा, और हम उतना हम खुद को न्याय करके साफ करेंगे, ना कि हम दूसरों को न्याय करेंगे। तो ये मुझे प्रभु सिखा रहा है कि जो भी तुम मुझसे मांगो उसे तुम विश्वास करो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें ये जरूरत नहीं पूछने की कि आप मुझे प्रभु बहुत सारा पैसा दो, या फिर आप मुझे बहुत सारा गाड़ियां दो, या बहुत सारा ये सेहत दो। लेकिन तुम मुझे जो आवश्यक है, जो प्रभु की इच्छा है, वो मांगो। जो दूसरी चीजें तुम मांगो या ना मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम अगर प्रभु परमेश्वर के राज्य को खोजोगे और उसकी धार्मिकता को खोजोगे, ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन तुम जो इम्पोर्टेंट चीजें है, जो आवश्यक चीजें है, जैसे पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ, प्रेम, पाप के ऊपर जय, ये सब तुम मुझसे पूछो। जब तुम मुझसे ये सब पूछे तो मेरा मन प्रसन्न होगा, और मैं तुम्हें जो जितना चाहे उतना बहुत अनलिमिटेड दूंगा। आमीन। Praise the Lord, brothers and sisters. I just want to thank God for the word shared today. In the last few days, God has been speaking very strongly to me in the area of living a comfortable life. After becoming a Christian also, I've always sought to have a comfortable life without much trouble, and was seeking after worldly riches. And through the words spoken today, and also through the verse Matthew 6:19-21, the word says, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also." Today I was talking about being double-minded. I've come across this word in the Bible before, but I never understood what exactly it means. But today it got me clear that I need to seek after spiritual riches and not worldly riches. Because the word is also saying that for where your treasure is, there your heart will be also. So if I'm seeking after both spiritual riches and worldly riches, then I'm double-minded. Then I'm not single-minded in my devotion to God, and also seeking after godliness. So today it became clear to me that I need to be single-minded in my pursuit of spiritual riches. And like what the word says in Matthew 6:33, that seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. So I need not worry about the worldly things, the needs of the world. God will provide me what I need for this life. So my devotion, my single-mindedness should be towards earning spiritual riches, which which thieves cannot steal away, or moth and rust does not destroy. I praise God for the word. Thank you. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर इन दिनों में मुझे सिखा रहे हैं कि कभी भी किसी बात की चिंता मत करो,
तो लूका के अध्याय 12 में पढ़ता हूँ 22 से आगे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए चिंता न करो, हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौओं पर ध्यान दो, वे न बोते हैं न काटते हैं, न उनके भंडार और न खता होते, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कई अधिक है। तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो अपने बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? तो परमेश्वर मुझे बता रहे थे कि कभी भी ट्रबल टेम्पटेशन आए फिर भी तुम उसमें कंटेन रहना। ये बातें परमेश्वर मुझे सिखा रहे थे, कभी भी चिंता मत करना। कभी भी हर एक परिस्थिति से प्रभु यीशु मसीह गए हैं, तो तुम भी जा सकते हो, तुम भी उसमें विजय पा सकते हो। कई बार मैं कुछ टेम्पटेशन ट्रायल रहता है तो मैं सोचता हूँ प्रभु यीशु मसीह इस टेम्पटेशन से जरूर गए होंगे, अपने जीवन में उस शरीर में रहेंगे, तो इस टाइम पे वो क्या करते होंगे। तो मैं उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आप हमें संभालेंगे, क्योंकि आप जीवित हैं। आपने आकाश, पृथ्वी, समुद्र, नदियाँ मुझे बनाया है, हमें कितने सारे आशीष दिया है पिछले जीवन में, और आपने अनुग्रह से हमें बचाया। तो इस सब बातों को मैं जब परमेश्वर धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो फियर जो है चला जाता है, और फिर परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में रहता है। और फिलिप में भी पौल बताता है कि मैं सब बातों में भूखा और रहना सीखा हूँ। तो वो सब बातें परमेश्वर का वचन मुझे इनकरेज करता है। आमीन। Praise God. I like to share a word about love of God. And last week I heard a message through one of the brother. So I just like to share. He told me one article. He read about an article, a small article, about what is God's love to us. So here this article was written by Leonardo Ravenhill in England. He was an author and he was a evangelist. So in that article he writes one story. There was a one millionaire. He had so much money that it was uncountable. So he used to spend like anything for his business purpose or for his personal thing. So one day what happened was he had a son, and that son was got kidnapped, and the kidnapper was asking for a ransom of $200 million to this person. So, and this was the only one son. He was only having this one son. So what Leonardo Ravenhill was telling in that article was, he might have signed so many checks, he might have signed so many money, he might have spent so many things on for all those earthly things, but when it came to the son's situation, he, without hesitation, without anything, or without thinking, or without negotiation with the kidnappers, he wrote a check of 200 million and just gave him blankly. So here you see that how much love for his son, that without thinking or without doing anything or negotiating, he gave like that. And spending on other things, he might have asked something, or he might have the calculation, or he might have the tally thing, whether whatever he has spent is he might have kept an account. But spending the money on his son, he might have never mind on spending that. So that is the love of the father and the son. So with this he says that how much our God in heaven, who have loved us, and the father who has loved this world so much, loved us. He sent his only son because he loved so much. But in today's time, we are forgetting what is God's love. So I just like to share one verse in Malachi chapter. Said like it is a old Testament, but it is applicable in today's time also, and we are questioning God, whether God is really loving us. So in Malachi chapter 1, in verse 2, it says that, I have loved you, says the Lord, but you say, how you loved us. So here the people are asking, Lord is questioning or complaining about us, that I have loved you, but you are questioning whether when have I loved you.
So why this question is that because I am the Satan is keeping us away from God. He is binding our eyes and not showing what is God's love, what he has done for us. So many things he has done for us, but Satan in this world is blinded us with all these earthly pleasure things, so that we cannot see God's love. So this is how these people are questioning, when have you loved us? So in today's situation also, so many times it comes that we are not seeing what is God's love. So we have to come closer to God to know about what is the real love, what is God done for us. So even in Paul's time, it says in Ephesians chapter 3:16, he prays to those people in they are Christians, they are believers, but still they lost one thing, was the love of God. And so in Ephesians chapter 3, it says that in verse 13 is, There's only a few minutes only. That's all. Try to finish your volley, because don't go to more than one verse. That's enough. so he prays to God, people in Ephesians, about the love of God. And he says in verse 16 says that strengthened with power through his spirit in the inner man. So this is how Paul is praying to God, and I pray to God that I need to know God's love, and I come near to God and fill us with his love. भाई बहन लोग कोई भी और कोई शेयर कर सकते हैं? I would like to share. Yes. See, as parents, we keep trying, we keep disciplining our children, because we love them. So we train them, we try to discipline all that it takes, because we really love them. And so is our Heavenly Father. Even He disciplines us and He loves us. So we should never, when He tries to discipline us, we should accept it very graciously. Now, just like a goldsmith or a silver, the guy who makes this gold or silver, he keeps on hitting that on the fire. Okay, but then how does he knows that now it's done? Now the silver is done. The right time to remove the silver from the fire. It's at that time when he sees his reflection on the silver. This is how, we should allow God to break us, to mold us until he sees Christ in us. This is something very beautiful that I learned in just sharing. Bless you all. Praise the Lord. I want to share the verse from Philippians chapter 3, verse 12 and 13. Not that I have already attained or I am already perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Here, Paul wrote from such spiritual maturity and purity that we might expect he believed that he had conquered all spiritual difficulties and saw himself as having arrived at near perfection. Yet he was so humble to assure us that this was not so. Just as a little child is a perfect human being, but still is far from perfect in all his development as a man, so the true child of God is also perfect in all parts, although not yet perfect in all the stages of his development in faith. Further, this verse says that, but I press on, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. According to this word, we must press on, and there is no turning back for us. We must press on for what Jesus wants. Our efforts must be put forth to do God's will and not our own. We must press on for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. As everything else, this upward call of God is only in Christ Jesus. So we must certainly follow the upward call of God in Christ Jesus and not in the efforts of our own flesh. This prize is nothing but the call itself, and not the benefits that come from the call or any other thing. The prize is to be able to run the race at all and working with God to do the work of His kingdom. Praise the Lord. प्रभु स्तुति असो
आजचे वचन ब्रदरनी बोलले ते वचन खरोखर मला लाभदायक झाले. फिलिप्पी 3:13 वचन मी अजून धरून घेतले आहे असे मी लेखित नाही, तर एक गोष्ट मी करतो तीही की मागील गोष्टी विसरून पुढील गोष्टीकडे लक्ष ठेवून. आज आम्ही मागील सर्व गोष्टी विसरून पुढील गोष्टीकडे लक्ष द्यावे, कारण प्रभू येशू म्हणाले की तो विश्वासाचा उत्पादक आहे आणि पूर्ण करणारा देव आहे. आम्ही त्याचकडे लक्ष द्यावे. याकोबाच्या पत्रामध्ये सांगितल्याप्रमाणे आम्ही देवाजवळ यावे, म्हणजे तो आम्हाजवळ येईल. तो खरा प्रकाश आहे आणि प्रत्येक गोष्टी प्रकाशात येत असता आमचे सर्व काय आहे ते उघडकीस येते. म्हणून आम्ही रोज त्या प्रभूवर अवलंबून आणि आमच्या इच्छेने नव्हे तर देवाच्या इच्छेने जगण्याकरता प्रभू आम्हाला सहायता आणि त्याची कृपा करू. प्रभूला स्तुती असो या वचनाबद्दल. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने इतना दिनों से वचन से हमसे बातें किया, आज भी प्रभु ने हमसे वचन के द्वारा बातें किया। इससे बहुत सारी बातें मुझे मेरे जीवन में लाभदायक मुझे एक वचन मिला है। लास्ट टाइम जो ब्रदर सैमुअल ब्रदर का जो सेरेमन चल रहा था, वहाँ पे ब्रदर बोल रहे थे कि पिछली बातें भूलना है और आगे की ओर लक्ष्य रखना है और वर्तमान में अच्छे रीति से चलना है। तो मेरे लाइफ में भी ऐसा था कि मैं पिछली बातें बहुत याद करता था और बहुत निराश होता था और आगे की ओर मैं फोकस नहीं कर पाता था। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि हमें शेर बनना है, न कि कुत्ता, क्योंकि कुत्ता अपने घाव चाट के अपनी पुरानी बातें ये करता रहता है, लेकिन शेर वो घाव को देखता भी नहीं है एंड वो आगे की ओर ही हमेशा उसका लक्ष्य रहता है। तो प्रभु ने हमें पुरानी बातें भूल के आगे की ओर देखने के लिए बुलाया। इस बातों से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन। Anybody else? Praise the Lord. Praise the Lord. अभी रिसेंटली मैं बाइबल पढ़ते समय एक वचन जो मेरे ध्यान में आया, जो हम बार बार पढ़ते हैं लेकिन मेरे ध्यान में नहीं आया था। मैं भी पहले बहुत बार पढ़ा हूँ। 8वां अध्याय लूका में, जहाँ पे बोने वाले का दृष्टांत के बारे में बोला गया है कि कुछ बीज है, परमेश्वर का वचन लिखा है 11वें पंक्ति में। 12वें में जो रास्ते किनारे पड़े थे बीज, उनके बारे में बोला है। 13वें में जो पत्थरीले जमीन पे गिरे थे उसके बारे में है। और 14th में जो है 14वें वाक्य में कांटों के बीच जो बीज गिरे थे उसके बारे में लिखा है। And that which fell among thorns are they which when they have heard go forth and are choked with the cares and riches and pleasure of this life and bring no fruit to perfection. मैंने इस बात पे पहले ध्यान नहीं दिया था, मैंने इसको बहुत बार पढ़ा था, लेकिन जो इस वर्ष की जो एंडिंग है and bring no fruit to perfection, तो फिलहाल मैं जिस परिस्थिति में से जा रहा हूँ या फिर जो मेरी आध्यात्मिक लाइफ रही है, उसमें मैं बहुत ज्यादा ये वाले स्टेज में खुद को पाता हूँ कि फल नहीं है, ऐसा नहीं है, बट लेकिन एंड ब्रिंग नो फ्रूट टू परफेक्शन, मतलब सिद्धता से बहुत दूर। फल जरूर है, प्रभु को जाने, प्रभु के मार्ग में चलने की कोशिश करे। कई चीजों में परमेश्वर ने बहुत अच्छी तरह से घड़ा ढला और बहुत आदतें ले लिए हैं, लेकिन टू ब्रिंग नो फ्रूट्स टू परफेक्शन, अभी भी मैं नहीं पाता हूँ कि मैं कोई भी फल को पूरी तरह से सिद्धता में खुद के अंदर उतार पाया हूँ।
तो ये वचन में पहले बहुत बार पढ़ा था, लेकिन इस बार जब मैं पढ़ा तो पवित्र आत्मा इस तरह से हमसे बात किए, तो अभी भी वचन के अनुसार अभी भी हम कांटों में ही पाए जा रहे हैं। और आने वाले समय में परमेश्वर का जैसा वचन है कि सिद्ध बनो क्योंकि मैं भी सिद्ध हूँ, बी परफेक्ट फॉर आई एम परफेक्ट, वैसा ही परमेश्वर चला रहे हैं, चलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमेन। Anybody else? प्रेज द लॉर्ड। हाँ। एक छोटा सा सेंटेंस, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर फ्रॉम इविल। मैं छोटा सा सेवक हूँ प्रभु का। मैं इस प्रार्थना को करके माफी मांगता हूँ अगर मेरे वर्ड्स में कुछ कमी रहती है। ब्रदर जॉर्जी सैमुअल साहब का एक अच्छा वर्ड मुझे अच्छा लगा कि द लाइट ऑफ द अर्थ इज जीसस। वो हमारा फोकस होना चाहिए। एंड द मोमेंट यू आर क्लोज टू जीसस, यू आर इत्र की तरह हमारी खुशबू फैलती है। वी बिकम क्राइस्ट लाइक, एंड दैट इज द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ। और पूरे जमाने को हम खुशबू बांटते हैं। वन ऑफ द लाइटनिंग वर्सेस दैट ही सेज वाज 25 रोमन 7 में, आई थैंक गॉड थ्रू जीसस I serve the law of God with flesh, the law of sin. So मेरी आत्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस इतर को प्राप्त करूँ और it brings lightness and happiness to the world around. Thank you, Jesus. Amen. मैं सोच रहा था लास्ट वीक हम लोग केन के बारे में सुन रहे थे, तो मैं केन के बारे में सोच रहा था कि केन का मतलब एक्चुअल में उसका समस्या क्या था करके। तो केन जो था वो परमेश्वर से स्वीकारा जाना चाहता था। ही वांटेड टू बी एक्सेप्टेड, जो एक तरीके से अच्छी बात थी। वो ईसो जैसा नहीं था। ईसो हैड नो डिजायर फॉर गॉड एट ऑल। वो ऑलमोस्ट उसको आत्मिक बातों का कोई मूल्य ही नहीं था ईसो को, तो वो अपने हिसाब से कुछ भी करके जी रहा था। लेकिन केन का हालत ऐसा नहीं था। वो नास्तिक नहीं था, वो परमेश्वर से स्वीकारा जाना चाहता था। लेकिन उसका समस्या क्या था कि वो बदलना नहीं चाहता था। वो जैसा है वैसे ही रहना चाहता था, लेकिन फिर भी चाहता था कि परमेश्वर उसको स्वीकारे। और परमेश्वर भी उसको बोलते हैं कि यदि तुम सही चीज करोगे तो मैं तुम्हें स्वीकारूंगा, लेकिन यदि तुम सही चीज नहीं करोगे तो तुम और पाप में फंसते जाओगे। केन उस समय उसको अपनी गलती माननी चाहिए थी, लेकिन वो कैसा था, वो फिर भी अपने खुद की सफाई दे रहा था और उसके भाई के ऊपर गुस्से में आ रहा था, परमेश्वर के ऊपर गुस्से में आ रहा था। लेकिन उसने ये नहीं समझा कि यहाँ पे जो समस्या है वो मैं ही खुद ही हूँ। मैं ही कारण हूँ जिसकी वजह से परमेश्वर मेरे को स्वीकार नहीं पा रहे, और कोई उसका कारण नहीं है। तो इसे मुझे भी रियलाइज हुआ कि मेरे जीवन में भी मुझे हमेशा गॉड के सामने ऑनेस्ट रहना है। मुझे ये गॉड को ये नहीं बोलना है कि गॉड मेरे लाइफ में ये समस्या है या ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। नहीं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कारण है मेरे आत्मिक जीवन में, जो भी कमी है, वो उसका कारण मैं खुद ही हूँ। जब भी मैं वो मानूंगा और फिर बोलूंगा कि परमेश्वर तुम मुझे मदद कर, ये सब का कारण मैं ही हूँ, तो परमेश्वर मेरी मदद करेगा। मेरे जीवन में भी पिछले 2 साल में खासकर परमेश्वर काफी काम कर रहे हैं। काफी सारे क्षेत्र में मैं अभी भी बहुत आगे नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मैं जैसा था वैसा भी नहीं हूँ। और मेरे अंदर अभी इच्छा है कि मैं पहले बहुत था कि परमेश्वर के लिए कुछ करूं, लेकिन अभी मुझे परमेश्वर के लिए कुछ बनना है। इसके विरोध के कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मतलब धार्मिक बनना है मेरे आपसी जीवन में। और मुझे विश्वास योग्य बनना है मेरे शरीर में, मेरे समय में, पैसों के मामलों में। और ये सारी इच्छाएं मैं देख रहा हूँ कि पहले के तुलना में और है मेरे जीवन में भी, पिछले दिनों की तुलना में। और मुझे विश्वास है कि जो भी कमी अभी भी है परमेश्वर उसको सिद्ध करेगा, क्योंकि यदि परमेश्वर ने मुझे इच्छा दिया है तो उसको पूरा भी वही करेगा। परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा कि वो सिर्फ इच्छा दे के फिर छोड़ देगा। नहीं, वो उसको पूरा भी करेगा मेरे जीवन में, और बहुत जल्द करेगा। I just want to share
quotation from the daily devotion. Do we spend on money, or do we spend on the anointing of the Holy Spirit? Ask yourself a question to test yourself. Will you reach the same mystery if you remove the anointing God has given you, equal to the mystery you would experience if those who are staying with you suddenly stop supporting you financially? Which one you will get more grip? Whether you, if the God stop the Holy Spirit, whether you will get more grip, or if the money who is supporting you is a job or something, or the parents, anybody, they are supporting financially, they stop to give. Which one will give more grip? The Holy Spirit, whether the stopping of Holy Spirit, anointing of the Holy Spirit, or the money. So that will give me whether I am loving more money or I am loving more the anointing of the Holy Spirit. Amen. Amen. तो बढ़िया बहनों, तो हम सोचेंगे कि अपोस्टल पॉल ने कहा कि आई एम प्रेसिंग ऑन, आई डोंट वांट टू से हिंदी प्रेसिंग ऑन, मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माय बेस्ट। तो हमारे जीवन में हमारा जो कुछ भी हमारा पूरे कोशिश करना चाहिए प्रभु के पीछे जाने के लिए। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ढीला डाला, जैसे हम लोग काम पे जाते हैं, लेकिन सरकारी कामगार कैसे काम करते हैं वो ढीला होता है। हम ढीला काम करने से प्रभु का पीछे हम नहीं कर सकते हैं, हम तो फंस जाएंगे दुनियादारी में। तो वी विल गेट entangled in the affairs of this world if we are not radical in our own life. Apostle Paul used the word press on, I will fight. तो हमको हमारा जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में एक फाइट होना चाहिए, एक लड़ाई होना चाहिए शैतान से, हमारा जड़ से। हम वी कैन नॉट शैतान को ब्लेम, वी कैन नॉट शेम शैतान को, अरे शैतान मुझे बहुत आकर्षक दे रहा है, दुनिया पे बहुत आकर्षक है। नहीं, हमको, हम इस दुनिया का नहीं है, हम प्रभु के लिए है। हम प्रभु का पीछा करना चाहिए जैसे अपोस्टल पॉल ने पीछा किया है। तो हम आगे तभी हम बढ़ेंगे और शैतान पे हम विजय पाएंगे, हमारा लस्ट से भी हम विजय पाएंगे। तो इन ऑल स्मॉल एरियाज ऑफ आवर लाइफ, जैसे खाने पीने का होता है, सोने का होता है, बाइबल पढ़ने का होता है, प्रार्थना करने में, हर छोटी चीज में हम लोग को एक लड़ाई करना चाहिए। इट इज अ बैटल। हमारा क्रिस्तीय जीवन एक लड़ाई है, एक पिकनिक नहीं है। जैसे हम आज, हमको अच्छा लगता है पिकनिक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जिंदगी पिकनिक जैसे है। शैतान तो है, बहुत मुसीबत है, कोई बीमारी है बाहर, तो पाप भी है, पाप हमारे पास भी आ सकता है। द लॉर्ड कैन, sin can come into our life at any time. तो हमको बहुत सावधान रहना चाहिए against all these things। तो हम प्रभु के पास आएंगे और प्रभु की संगति में आएंगे। तो ये प्रभु का धन्यवाद हो। Let us pray, come to the meeting। Father, we thank you and praise you। आप हमसे बहुत ही प्यार करते हैं कि आपने हमको बुलाया, आपका संगति, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए। लॉर्ड, दिन प्रतिदिन हमको एक कृपा दीजिए प्रभु जी। हमको पाप से घृणा करना है। लॉर्ड, वी वांट टू हेट आवर सिन, लॉर्ड, एंड लव, hate the things that we want to do ourselves, Lord। We want to walk in your will, Lord। Help us, Lord, daily to take up our cross। अपना क्रूस रोज लेके, अपना इच्छा नहीं आपका इच्छा करने के लिए हमको ये दान दे दीजिए प्रभु। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तो ब्रदर्स सिस्टर्स, मीटिंग